ओके भावना शर्मा, आपका अभी भी कैमरा ऑफ है, अपना कैमरा ऑन करें। बना दिया आप स्टाफ को। सभी स्टूडेंट्स के कैमरा ऑन होंगे, किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होगा, नहीं तो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा क्लास से। फिर एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा था और ये प्रॉब्लम थी। ओके, आप डायरेक्ट क्लास से रिमूव होंगे। ओके, सो स्टूडेंट नेम पर्श 973। पर्श 973। पर्श कैमरा नहीं ऑफ करना है। हाँ पर्श, आई एम ऑडिबल टू यू। ओके, अभिनव चौधरी 1271। अभिनव चौधरी 1271। आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। ओके, आयुष परमार 208। Yes, sir. Ayush Parmar, question is, what is question R? Yes, sir. Sir, the question R is the member of question is the gift for asking questions to ministers about their respective departments. Generally, the first hour of sitting. Generally, the first hour of sitting of the Lok Sabha deported. The question hour are four types: TED, understand, short notice of question, and question addressed by a private member. Okay, Ayush. Next, Akshay Kumar 1009. Akshay Kumar 1009. Yes, sir. Akshay, same question. What is question R? What is question R? What is question R? Akshit, what is question hour? Do you know the answer? No, sir. तो अक्षित आंसर आना चाहिए। ओके, अभी बताया आयुष ने आंसर। ओके, अभी केयरफुली लिसन करना है, आंसर फिर पूछूंगा आपसे मैं। Yes, sir. ओके, केयरफुली लिसन करना है, अभी आपसे फिर से आंसर मैं फिर से सुनूंगा मैं। ओके, आनंदी वासुदेवा 1211। Yes, sir. हाँ, ये सेम क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन आवर? The question answer time left for asking questions to ministers about the respective department. Generally, the first hour of a sitting of the Lok Sabha is devoted to question, and that hour is called the question hour. Okay, next is Bhavna Sharma 1069. Yes, sir. Okay, Bhavna Sharma 1069. Yes, sir. Bhavna, same question. What is question hour? Yes, sir. Sir, question hour is the time cap for the minister to asking questions to the other ministers about their respective departments. Okay, good. Okay, next Ananya Dogra 1769. Yes, sir. The question hour is the time kept
for asking questions to ministers about their respective department. Generally, the first hour of the sitting of the Lok Sabha is devoted questions. Questions are the four types: started, unstandard, short notice Start questions. question, unstart question, and short notice question. Okay, start. Question and questions Start. addressed to the private members. Okay, okay, Ananya, good. नेक्स्ट इज अरुण चौधरी। देखो किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, काफी स्टूडेंट्स के कैमरा ऑफ हैं, सभी स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करेंगे। आपको बार बार नहीं कहना है कि बात रिपीट नहीं करनी है कि अपने कैमरा ऑन करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। अभिमन्यु सुपहिया, अभिनव चौधरी, आनंदी वासुदेवा, माधव, प्रकाश, विभव शर्मा, आप सभी के कैमरा ऑफ हैं, अपने अपने कैमरा ऑन करो सभी स्टूडेंट। अभिनव चौधरी आपका कैमरा भी ऑफ है। Okay, next is Vanshika. Yes, sir. Vanshika. Okay, question is, why is the Rajya Sabha called as the Council of States? Why is the Rajya Sabha called as the Council of States? Yes, sir. Rajya Sabha called the Council of States because it consists of representation of states and union territories. It roughly is a proportion to the population elect state is represented by at least one member. 12 members are nominated by the parliament. Okay, next is Akshit Chaudhary. Okay, okay, Vanshika, good. Next is Arun Chaudhary 1063. Arun, आपका कैमरा ऑफ है, अपने कैमरा ऑन करो। हाँ, 1063 Yes, Arun sir. Chaudhary. Same question. Why is the Rajya Sabha called as the Council of States? क्यों हम उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं राज्य सभा? Do you know the answer? Okay, अनन्या डोगरा 1769, आपने हैंड रेज किया है। तो ये वाला नहीं आता। Okay, अथरव 3218, अथरव कैमरा ऑफ है। अथरव 3218, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, सक्षम 1948, सक्षम, पर्थ कायस्था 1176, पर्थ कायस्था 1176, पर्थ कायस्था क्वेश्चन, why is the Rajya Sabha called as the Council of States? अभिमन्यु सुपहिया, अरे रिप्लाई क्यों नहीं करे हो? आई एम ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स? सभी को मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है? यस सर। हाँ, सभी को साउंड क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? Sir, clear. ओके, जरा मैं इनसे बात कर लूं, जरा एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ओके, अभी मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूंगा रिप्लाई नहीं करेगा तो क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा, क्योंकि ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना है।
ओके, सबसे पहले अभिनव चौधरी 1271, अभिनव चौधरी 1271, अक्षित कुमार, अरुण चौधरी 1063, अरुण चौधरी 1063, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? Yes. रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, क्वेश्चन आंसर करना है क्वेश्चन का। not audible. हाँ, ये बात ठीक है, ये सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल है ना, और अपनी बात खत्म कर लिया। हाँ, अरुण चौधरी क्लास सिलेक्ट, अरुण चौधरी 1063, अरुण चौधरी ओके, नेक्स्ट इज अथरव 3218, अथरव आई एम ऑडिबल टू यू? अथरव आपका कैमरा भी ऑफ है। ओके, जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनकी क्लास में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शिवम रजिस्ट्रेशन नंबर 2135, शिवम रजिस्ट्रेशन नंबर 2135, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, फोन ऑन करके चले गए हैं सभी। ओके, यतीन 983, यतीन 983, यतीन क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो ऑन करके चले गए हैं कहीं। हाँ, और कोई स्टूडेंट जिसका नाम नहीं लूंगा क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा वो, ऐसे नहीं है कि फोन ऑन कर दिया और चले गए हैं। टीचर यहाँ से नेम ले रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, कनीश कुमार 2333, कनीश कुमार 2333, ओके, पर्च 973, पर्च 973, ओके, मेरी क्लास में अब कोई भी नहीं आएगा ऐसे, जिसे रिप्लाई नहीं करना वो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, वैष्णवी 1930, वैष्णवी 1930, ओके, यामिनी शर्मा 1200। ओके, अब जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा क्लास से डायरेक्ट रिमूव होगा वो। ओके, ऐसे स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं क्लास में, जो फोन ऑन करके चले गए हैं तो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है उन्हें। हाँ, यामिनी शर्मा 1200। Yes, sir. हाँ, यामिनी, क्वेश्चन इज व्हाई इज द राज्यसभा कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? Sir, the Rajya Sabha is called as the Council of States. Sir, the Rajya Sabha is called as the Council of States because it consists of the representation of states and union territories roughly is proportion to the population, and each state is represented by at least one member, and 12 members are maintained by the president. हाँ, 12 members are nominated. ओके, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो देखो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमें क्यों कहते हैं इसे, हम काउंसिल ऑफ स्टेट हम इसे इसलिए कहते हैं साउथ को, क्योंकि जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, ये सभी स्टेट से आए हैं। ये जब नॉमिनेट होते हैं तो सभी ये स्टेट से ही नॉमिनेट होते हैं। ओके, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा जो कि कहीं और से आता है। ओके, सिर्फ इन 12 मेंबर्स को छोड़ के, क्योंकि जो 12 मेंबर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी जो मेंबर्स हैं ये सभी स्टेट से आते हैं। ये तो स्टेट से किस तरह से आते हैं ये? ओके, तो अकॉर्डिंग टू किसी भी स्टेट की जितनी अगर पॉपुलेशन है तो उसके प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग वो एक फॉर्मूला लगाते हैं और उससे उनको कैलकुलेट करके फिर वो डिसाइड करते हैं कि स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर्स आ सकते हैं यहाँ से। ओके, जैसे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश है अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से राज्यसभा के 3 मेंबर्स हैं। ओके, फिर इनको नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट करते हैं जो मेंबर्स
जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ओके, वही इनको आगे नॉमिनेट करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हर किसी को उठाया और बना दिया। ओके, उन्हीं मेंबर्स को ये नॉमिनेट करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, वो इन्हें नॉमिनेट करते हैं। इन्हें नॉमिनेट करके वहां पे भेजते हैं। So next question is why India choose parliamentary form of government? Okay, why India choose as a parliamentary form of government? हाँ, दीपिका चौधरी। दीपिका चौधरी। हाँ दीपिका, आई एम ऑडिबल टू यू। ओके, लवली 1032। लवली 1032। लवली प्रेजेंट हो क्लास में? नंदिनी 2438। लवली प्रेजेंट हो क्लास में 1032? नहीं तो अदरवाइज मैं आपको रिमूव करूंगा क्लास से। ओके, नंदिनी 2438। नंदिनी प्रेजेंट हो क्लास में? आपका माइक नहीं चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज शिवानी 1087। Yes, sir. तो शिवानी, क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? Sir, I don't know answer. शिवानी, आपको आंसर आना चाहिए। आपको, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि आप मना करो आंसर के लिए। आप तो स्टडी में काफी अच्छे हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए आपको। और किसी आंसर आता है? वंशिका को आंसर आता है ये? व्हाई इंडिया Yes, चूज sir. एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हाँ, यस वंशिका। Yes, sir. India chose parliamentary form of government because they wanted a government government to represent its people. People also wanted to participate to controlling the government through the approval or rejection. ओके। ओके शिवानी, आंसर मालूम पड़ा आपको? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, देखो इंडिया ने क्यों चूज किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ओके, क्योंकि देखो ऐसा था कि उनको लगता था कि ऐसी कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे पीपल की पार्टिसिपेशन इंश्योर हो। मीन्स कि जो पीपल्स हैं कंट्री के, जो इंडियन कंट्री के पीपल्स हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर होनी चाहिए कि हाँ, हम भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसी का रिजल्ट है कि जितने भी जो जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, कि जिनके जो भी पर्सन, जो भी सिटीजन जिनकी एज 18 ईयर से अबव है, तो वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में, उसे बनाने में काफी वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं, सभी पीपल्स। ओके, तो इसलिए इंडिया ने चूज किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो बिकॉज दे वांटेड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंट इट्स पीपल। ओके, जो पीपल को ही रिप्रेजेंट करे और पीपल ही बना रही है उन्हें। ओके, इसलिए इंडिया ने चूज किया है। Okay, and also people also wanted to participate in controlling the government through approval or rejection. Okay, कि people जो है participate कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट को अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं वो? बाय वोटिंग से, कि हमें जो है, हमें राइट दिया गया है, राइट टू वोट। ओके, कि हम वोट डालेंगे और हम किसी भी गवर्नमेंट को मेक भी कर सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। okay, इसलिए इंडिया ने चूज किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Okay. Next is Shashwat 2857. Yes, sir. Shashwat, question is, what role does separation of powers play in a parliamentary form of government? The parliament. What role does separation of power plays in a parliamentary form of government? शाश्वत, आंसर आता है आपको? शाश्वत, आंसर आता है आपको? जस्ट से यस और नो। Yes, sir.
Sir, I give the आंसर। ओके, अभिनव चौधरी 1271। अभिनव चौधरी 1271। अभिनव चौधरी, वॉइस मेरी कट कट के आ रही है आपके पास? No, sir. नहीं, अभिनव चौधरी ने मैसेज किया कि सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट इज आनंदी वासुदेवा 1211। Yes, sir. Anandi, a question: what role does separation of power plays in a parliamentary form of government? Okay, Nandini 2438। नंदिनी, किसी आंसर आता है इस क्वेश्चन का? मुझे लगता है कि आपको आंसर नहीं आता है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। ओके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। ओके, व्हाट रोल डज सेपरेशन ऑफ पावर प्लेज इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ओके, देखो क्या रोल प्ले करेगा अगर हमने सेपरेशन ऑफ पावर रखा है हमने। ओके, देखो ऐसा है कि अगर किसी भी एक पर्सन को या किसी भी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को अगर सभी पावर्स दे दी जाएंगी तो क्या होगा? वो अपने आप को एज अ किंग समझेगा कि बस मैं ही हूँ, बाकी तो कोई भी नहीं मेरे सामने। ओके, इसलिए जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ, ओके, तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस की गई। मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो इन तीनों के बीच में पावर को इस तरह से इक्वल डिवाइड किया गया है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो कि वहां पे किंग ना बन जाए। वो ऐसा ना हो कि सभी पावर्स उसके पास ही चली जाए। ओके, तो सभी के ऊपर जो पावर्स हैं इक्वल डिवाइड की गई और सभी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी किया गया। ओके, तो ये तीनों ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे के वर्क को चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा वर्क तो नहीं कर रहा है जो पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं है। ओके, इसलिए जो सेपरेशन ऑफ पावर वो उसमें डिवाइड की गई। ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसका जो क्वेश्चन है, देखो, द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन्स एंश्योर दैट नो सिंगल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनड्यू पावर इन रिलेशन टू द अदर्स। ओके, अनड्यू पावर मीन्स कि कोई भी ऐसे किंग ना बन जाए कि अपनी ही बात वो करते रहे। ओके, तो उनके ऊपर चेक एक आई होनी चाहिए जो कि प्रॉपर वे से उन्हें चेक करती रहेगी हमें, इसलिए जो पावर्स है उससे सेपरेट किया गया। क्योंकि सभी के बाद देखो, जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी अपनी पावर्स हैं। जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं हमारे, उनकी अपनी पावर्स हैं। और एग्जीक्यूटिव है, उनकी अपनी पावर्स हैं। ओके, इसलिए इंडिया ने चूज किया सेपरेशन ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ताकि कोई भी ऑर्गन है वो वहां पे अपने आप को किंग ना समझे। ओके, और एक दूसरे के ऊपर ये, उनके वर्किंग के ऊपर ये एक आई भी रख सके कि कौन किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज शुभांगी नारायण 2993। Yes, sir. शुभांगी, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट इन ब्रीफ। ओके, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है तो इसमें ऑर्गन्स भी आने चाहिए। ओके, एक्सप्लेन द ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट इन ब्रीफ। शुभांगी नारायण, आंसर? No, sir. नहीं आता है आपको? ओके, आपको मालूम है 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अभी बताए मैंने 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के, सॉरी पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। हाँ, शुभांगी, नहीं मालूम है आपको 3 ऑर्गन्स? ओके, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर, सबसे पहले लेजिस्लेचर। ओके, तो लेजिस्लेचर में क्या होता है? देखो, पहले 3 ऑर्गन्स हैं।
सबसे पहले लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में क्या है, लेजिस्लेचर में आएंगे जो हमारी पार्लियामेंट है, लाइक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा एंड विधान काउंसिल, ओके, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। ओके, ये सभी लेजिस्लेचर में। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लॉज हैं उन्हें फॉर्म किया जाता है, कोई टैक्स है उसे इम्पोज भी किया जाता है, कोई पब्लिक फाइनेंस का इशू है वो भी इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाते हैं। ओके, मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये कि लेजिस्लेचर में जितने भी लॉज हैं सभी लॉज बनते हैं और वहाँ पे अमेंडमेंट भी होती है लॉज इन लेजिस्लेचर। सेकेंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे पास आते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये सभी एग्जीक्यूटिव हैं। ओके, जो कि एनफोर्स करते हैं, जो भी लॉज बनाए हैं लेजिस्लेचर से उनको एनफोर्स करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि अच्छे से इंप्लीमेंट हुए हैं, नहीं इंप्लीमेंट हुए हैं। ओके, उसके बाद लास्ट वन है जुडिशरी। ओके, जुडिशरी मींस कि जो भी लॉज बने उन्हें इंटरप्रेट करेगी। ओके, द बॉडी विच इंटरप्रेट्स द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी का सिर्फ एक वर्क नहीं है कि उन्हें सिर्फ जो आपके केसेस है उन्हें हैंडल करना है, ये लॉज को इंटरप्रेट भी करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करती है ये। ओके, और जो ऑर्गन्स हैं बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये कभी भी इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करती है जुडिशरी। ओके, सो द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर है सभी कोई? अब नेक्स्ट फाइल 2062। फाइल 2062। File, I am audible to you. File 2062. Perth Kaista 1176. Yes, sir. Perth Kaista Yes, sir. question is Yes, sir. define the parliamentary form of government. Is define the parliamentary form of government, sir. It Ah, is yes. the parliamentary form of sir. It is the parliamentary form of government. Prime Minister is the leader of the majority party. Follows the decision taken by the parliament. But prime minister is the इस तरह से बोलना है, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड फॉलोज द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट। ओके, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एंड ऑल्सो जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगी उन्हें फॉलो भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सक्षम 1948। सक्षम सक्षम 1948। हाँ, इसमें जैसे नाम दिया था। अभिमन्यु 1748। अभिमन्यु 1748। अभिमन्यु रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। ये नहीं कि आपने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, ये एक्सक्यूज नहीं चलने ऐसे ही। अभिमन्यु 1748। ओके, शिवानी 1087। Yes, sir. Shivani, question is explain the organs of the parliament in brief. The three organs of the government are first, legislature. It has the power to make law related to the tax, public finance, and policy, etc. Second, executive, the body which enforces the law.
Third, judiciary, the body which interprets the law and constitution. Two organs cannot interfere. Okay. Next is Bhavna Sharma, 1069. Yes, sir. Bhavna Sharma, explain the organs of the parliament in brief. Yes, sir. There are three organs of the government. First, legislature. It has power. It has power to make. It has power to make law related to public finance, tax, and policy, etc. Number two, executive. The body. The body. Executive, the body which enforce the law. Third, judiciary, the body which interprets the law and constitution, and two organ cannot interfere. Okay. Ayush Parmar, 2086. Yes, sir. Ayush, same question. ओके तो अभी जो मेरे पास स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में अभी, ओके, उन्हीं की सिर्फ प्रेजेंट लगेगी, बाकी सभी स्टूडेंट की एब्सेंट लगेगी आज की। ओके, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना फोन ऑन किया है और खुद निकल गए हैं कहीं पे, सिर्फ नाम के लिए क्लास लगा रहे हैं। टीचर यहाँ से नाम ले रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर इनके एक्सक्यूज सुनो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो जो स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं की ही प्रेजेंट लगेगी। ओके, मेरे पास अभी यामिनी शर्मा, अक्षित कुमार, अक्षित चौधरी, आयुष परमार, भावना शर्मा, Present, sir. पायल, Present, sir. शुभानी, शुभांगी नारायण एंड वंशिका। ओके, क्योंकि पायल ने भी रिप्लाई नहीं किया है, पायल 2062। ओके, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी की एब्सेंट लगेगी।